میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نہیں سوچتے کہ رمضان مبارک جس میں اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور گویا مغفرت سیل پر ہوتی ہے، اسے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے؟ سبحان اللہ، ہمیں اس پر زیادہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر جوش ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، ہم ماہ رجب میں پہنچ چکے ہیں۔ کیا آپ نے ایک بات محسوس کی ہے؟ میں نے اپنی چند دہائیوں کی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ہر گزرتا ہوا سال پچھلے سال سے زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی بھی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ ہم رمضان کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ کیا میں پچھلے رمضان سے بہتر ہوا ہوں؟ کیا میں سالوں میں خود کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوا ہوں؟ اس کا جواب ہاں ہونا چاہیے، چاہے یہ بہت تھوڑا بہتری کا سفر ہو، 1 انچ کے برابر بھی ہو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ صرف 1 انچ کی بہتری کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محنت کی درکار ہے۔ ٹھیک ہے، کم سے کم یہ آگے کی پرگتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں میرے بھائی، کیا آپ اپنی نوکری میں اضافہ، انکریمنٹ چاہتے ہیں، تو آپ ہاں کہیں گے۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ ابھی کیا کما رہے ہیں، اور اگر آپ مثال کے طور پر کہیں میں صرف 50,000 پرتی ماہ کما رہا ہوں، اور پھر میں پوچھوں آپ کتنا پانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ اپنے دل کی اصلی خواہش بتانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور جواب میں کہتے ہیں آپ کیا پیشکش کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بس صاف صاف کہہ دیجیے میں 5 لاکھ چاہتا ہوں۔ پھر کوئی آپ کو پاگل کہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا شخص ہو اور کہے یہ لو تمہیں مل گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زمین پر یہ نایاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ جو چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں رمضان کے روزوں کے ذکر کے ترنت بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کی بہت غریب ہوں پکارنے والے۔ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر کامل یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سبحان اللہ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگتے رہیں اگر وہ راہ ہدایت چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تمہاری زندگی میں مشکلیں اس کی محبت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اگر یہ آپ کو اللہ کے قریب لا رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو شیطان آپ پر حاوی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو رمضان کا مہینہ دیا ہے، آنسوؤں کا مہینہ، رونے کا مہینہ، دل کو نرم کرنے کا مہینہ۔ جب میں آنسوؤں اور رونے کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب افسوس سے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت ضائع کر دیا۔ ہم نے حالیہ دنوں میں کتنی بار سنا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ جو اچانک دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر کیا تھی؟ ہم سے بھی کم۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ تیار ہو جانے کے لیے؟ ہم میں سے کئی لوگ کہیں گے نہیں، اور یہ درست بھی ہے، ہم میں سے اکثر ابھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ کی رحمت کی امید رکھی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب پچھلے زمانے کے لوگ غلطی کرتے تھے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ تمہیں بھی معاف کرے گا، مجھے بھی معاف کرے گا، اور ہم سبھی کو معاف کرے گا۔ ہمارے پاس اللہ کی رحمت کی امید کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں امید بنائے رکھنی چاہیے۔ یہاں جب میں جرائم کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب بڑے بڑے گناہوں سے نہیں ہوتا ہے، جیسی قتل وغیرہ، بلکہ وہ گناہ مراد ہے جو ہم سب نے کیے ہیں، جن پر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، جس میں میں خود بھی شامل ہوں۔ زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنا معصوم ہو کہ اس نے کبھی غلطی نہ کی ہو۔ تمام بنی آدم، تمام انسان غلطیاں کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے رسول اللہ کو محفوظ رکھا، یہ ایک الگ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ سب سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ میں تمہارے اپنے اور آج اس دھرتی پر رہنے والے سبھی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے اور تم ہی ہو جو گناہ کرتے ہو تو وہ غلط ہیں، انہیں کسی اور پہلو سے مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں، کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑے گناہ کرتے ہیں، مگر یہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے۔ بعض اوقات وہ لوگ جو ماضی میں وقت میں بڑے گناہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں بنسبت ان کے جو چھوٹے گناہ کر کے اللہ سے دور ہو گئے۔
इसी लिए अल्लाह ताला हमें एक बरकत वाला महीना अता फरमाता है ताकि तुम गौर करो कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, पता भी नहीं चलेगा। और पहली तरावीह इस मस्जिद में हो रही होगी, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। क्या तुम्हें इसका इल्म है? ये मुमकिन है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, यानी आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनका जब रमज़ान के करीब जिक्र किया जाएगा तो लोग कहेंगे अल्लाह इस पर रहमत फरमाए, वह नेक आदमी था। आप रमज़ान का महीना देख भी ना सकें, क्या आप इस हकीकत को समझते हैं? ऐ अल्लाह हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। ये क्यों इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हम रमज़ान की बरकतों और इनामात को पाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक निहायत दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। अगर आप अभी से कोई नेक काम करने की पोख्ता नियत कर लें और किसी वजह से उसे पूरा न कर सकें, लेकिन आपकी नीयत सच्ची और खालिस हो, तो अगर आप इस नीयत के पूरा होने से पहले वफात पा जाएं, तब भी अल्लाह ताला आपको उसका पूरा सवाब अता फरमाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप पुख्ता इरादा करें कि रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ूंगा और आप इस इरादे में सच्चे हों, तो अल्लाह आपको उसका पूरा सवाब अता करेगा, चाहे आप उसे मुकम्मल न कर सकें। इसी तरह अगर आप रमज़ान में ज़्यादा नेक अमाल करने का इरादा रखते हैं तो अभी से थोड़ा थोड़ा अमल शुरू कर दें। नबी करीम की सुन्नत ये थी कि वह रमज़ान से पहले ही इबादत का आगाज़ कर देते थे। आप रजब और शाबान में रोज़े रखा करते थे ताकि रमज़ान की तैयारी हो सके। खास तौर पर शाबान के महीने में आप कसरत से रोजे रखते ताकि रमज़ान में ज़्यादा सहूलत हो। इसी तरह रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने में भी आप रोजे रखते ताकि इबादत का सिलसिला जारी रहे। सुभान अल्लाह। अभी से शुरुआत करें। जब आप नमाज पढ़ें तो सुकून और ध्यान से पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत और नफल नमाज को भी शामिल करें और देखें कि इसका आपकी रूहानी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त असर होता है। आप अपनी तरावीह से लुत्फ़ अंदोज होंगे। लेकिन अगर आप अभी से इसकी मंसूबा बना रहे हैं तो मेरे भाइयों, चलो हाफिज के पास जाएं और उनसे कहें कि वे तेज और मुख्तसर पढ़ें, क्योंकि हम जल्दी निकलना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर आपकी नीयत यही है तो हो सकता है कि आप रमज़ान को देख ही ना सकें। फिर क्या होगा? क्या आप अल्लाह का सामना करने के लिए तैयार हैं और कह सकेंगे कि ऐ अल्लाह, मैं रमज़ान की तैयारी में मशरूफ था और सबसे तेज़ पढ़ने वाले को तलाश कर रहा था। अल्लाहु अकबर। हम इससे बुलंद हैं इंशाअल्लाह, हम इससे बेहतर लोग हैं, हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं और अल्लाह की नेमतों की ज़्यादा कदर करने वाले हैं। बजाय इसके कि हम सिर्फ उन इबादतों को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज की हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? आप आज ही इस्तिग़फ़ार करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का इरादा करें और आज ही इसे बदलने की नीयत करें। चाहे आप रमज़ान का महीना देखें या न देखें, अल्लाह के हुक्म से उसकी रहमत आपको इस तरह ढांप लेगी कि आपको आखिरत में किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। अगर आपके अंदर ये दो खूबियाँ मौजूद हैं तो यकीन करें अल्लाह आपको एक अजीम इनाम अता करेगा। वो दो खूबियाँ क्या हैं? अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। वो लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, इसका मतलब ये है कि तुम उसी की इबादत करते हो, तुम उसी को सजदा करते हो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, न सिर्फ ज़ुबानी दावा करने के तौर पर बल्कि इस दर्जे तक कि तुम उसकी रजा हासिल करने के लिए मेहनत करते हो। फिर इस्तेकामत, साबित कदमी इख्तियार करते हैं, यानी जो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है और फिर अपनी पूरी इस्तिरत के मुताबिक साबित कदम रहते हैं। इस्तिकामत में रोज़ाना अल्लाह से मगफिरत तलब करना शामिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा साबित कदम थे और रोज़ाना मगफिरत तलब करते थे। तो अगर तुम साबित कदम हो और कहते हो कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, तो अल्लाह फरमाता है कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं। मौत के वक़्त या तो तुम्हारे अमाल के मुताबिक ऐसे फरिश्ते आएंगे जिनसे तुम डर जाओगे, या फिर ऐसे फरिश्ते आएंगे जिन्हें देखकर तुम मुस्कुरा दोगे, और यह तुम्हारे अमाल के साथ साथ अल्लाह की रहमत पर भी मुनहसर होगा। मेरे अमाल क्या हैं? मेरे अमाल वो चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे 100% नहीं हैं। जब मैं अपनी नमाज अदा करता हूँ, क्या हम सब की तवज्जो कभी पूरी तरह 100% होती है? जवाब है नहीं। तो इस कमी का क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं हम अपनी रहमत से इसे पूरा करते हैं। हमें मालूम है कि तुमने क्या किया। तुम एक इंसान हो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, तुम्हें कोई फिक्र लाहक थी, कोई मसला दरपेश था। मिसाल के तौर पर सुबह सवेरे कुछ बड़ा वाक़या पेश आया हो, तुम्हारा जहन उसमें मशगूल था,
लेकिन साथ ही साथ तुम तवज्जो मरकूज करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं हम जानते हैं तुम हमारे हो, हमें मालूम है कि तुमने हमारी इबादत की, तुमने सिर्फ मेरी इबादत की। अल्लाह कहते हैं मैं इस कमी को माफ़ कर दूंगा, मैं इसे अपनी रहमत से पूरा कर दूंगा। और एक और बड़ी नेमत यह है कि क्या तुम जानते हो, बुनियादी तौर पर तुम्हारा रिकॉर्ड फ़र्ज अमाल के लिहाज से लिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे महबूब आमाल वही हैं जो मैंने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। यही वे आमाल हैं जिन्हें अल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। अल्लाह कभी भी किसी चीज़ को फ़र्ज़ न करते अगर वे उसे पसंद न करते। जब अल्लाह फरमाते हैं कि जौहर की 4 रकात फ़र्ज़ हैं, तो वे उन 4 रकातों को किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद फरमाते हैं, इसीलिए उन्हें फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब वह किसी चीज़ को पसंद करते हैं और हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो वह फरमाते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत का सबूत देना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे नज़दीक सबसे महबूब चीज़ फ़र्ज़ इबादतें हैं। ये एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे नज़दीक सबसे महबूब अमाल वही हैं जो मैंने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। अब जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जैसे नमाज में तवज्जो की कमी या कोई और मामूली लहजिश। तो क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की रहमत क्या करती है? अल्लाह फरमाता है आगे बढ़ो और अपनी मोहब्बत को साबित करो, यानी जो फ़र्ज़ है उससे आगे जाओ, नफल और सुन्नत इबादतों की तरफ जाओ, उनमें डूब जाओ और उन्हें जारी रखो, क्योंकि क़यामत के दिन जब फ़र्ज़ इबादतों में कोई कमी होगी तो मैं तुम्हारी नफल इबादतों को देखूंगा और उनके ज़रिए उस कमी को पूरा कर दूंगा। मिसाल के तौर पर 5 वक़्त की नमाजें अगर पूरी तरह मुकम्मल ना हो सकें तो अल्लाह फरमाएगा क्या इस बंदे के पास कोई नफल इबादतें हैं? अगर जवाब हाँ में होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा हम फ़र्ज़ की कमी को नफल इबादतों के ज़रिए पूरा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम किसी को $10 के कर्जदार हो और वह भी तुम्हें $10 का कर्जदार हो, तो हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला के मामले में अगर तुम्हारी फ़र्ज़ इबादतों में कुछ कमी हो लेकिन तुमने नफल इबादतें ज़्यादा की हों तो अल्लाह ताला फरमाएगा हमने तुम्हारी अतिरिक्त यानी इजाफी इबादतों को देखा और उससे तुम्हारी फ़र्ज़ इबादतों को मुकम्मल कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो बंदा जितनी ज़्यादा नफल इबादतें करता है वह अल्लाह से उतना ही करीब होता जाता है। बहुत से लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? फ़र्क 2 बातों से पड़ता है। 1, इबादत का मयार। 2, फ़र्ज़ इबादतों के अलावा नफल इबादतें करना। इसी तरह ज़कात एक फ़र्ज़ी सदका है जिसका आम तौर पर 2.5% निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि आप इससे ज़्यादा कितना देते हो, क्योंकि 2.5% तो हमेशा अल्लाह का हक था, लेकिन जो आप इससे ज़्यादा दोगे वह आपकी तरफ से होगा। क्या आप 5% दोगे, 10% दोगे, या जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बिना हिसाब के खर्च करोगे? यही आपकी मोहब्बत और कुर्बानी का सबूत होगा। यहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो मैं कोशिश करूँगा। ऐसे लोग होते हैं हम में से बहुत से। मैं ये सोचना चाहूँगा कि जहाँ भी ज़रूरत हो अगर आप मदद कर सकते हैं, ज़कात हो या ना हो आप देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह हकीकत में देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ वही देंगे जो उसका है, या अब आप इसके अलावा अतिरिक्त या इजाफी तौर पर वह भी देंगे जो आपका है? तो रमज़ान के इस महीने की तरफ वापस आते हैं। अल्लाह आपको इससे नवाजता है। वह आयत जो मैंने पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि फरिश्ते नाजिल होंगे, और मैं आपको 2 किस्म के फरिश्तों की व्याख्या वजाहत कर रहा था। कुछ आपको खरुशी देंगे, अल्लाह हमें वे फरिश्ते अता करे ताकि जब हम मरें तो मुस्कुराते हुए मरें, शहादत के साथ। क्या आप जानते हैं कि वे उस शख्स से क्या कहेंगे जिसने कहा और फिर साबित कदमी इख्तियार की? 2 खूबियां बताई गई थी। वे लोग जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और फिर उस पर डटे रहे, उनके पास फरिश्ते उस वक्त आएंगे और कहेंगे कोई खौफ की ज़रूरत नहीं, फिक्र ना करो, परेशान ना हो। वे बहुत खूबसूरत सूरत में आएंगे, इतने हसीन कि आप सुकून और मतमईन महसूस करेंगे। जानते हैं जब कहा जाता है कि कुछ लोग आपको लेने आ रहे हैं और आप कहते हैं अच्छा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर आप देखते हैं कि 5-6 बड़े डरावने लोग बंदूकों के साथ आ रहे हैं, तो क्या होता है? ओह, आप डर जाते हैं, 2-3 बार घूंट लेते हैं, ये क्या हो रहा है भाई? लेकिन ज़रा तसव्वुर करें कि आप कुछ मुस्कुराते हुए लोगों को देखें जो बहुत खुश और अच्छे लग रहे हों माशाअल्लाह, और वे आपको सलाम कह रहे हों, अस्सलामु अलैकुम, वे आपको खुश आमदीद कह रहे हों, यही आपका इस्तकबाल स्वागत कर रहे हैं, यही फरिश्ते करेंगे। अल्लाह हमें ये नसीब करे कि फरिश्ते हमें आखिरत में खुश आमदीद कहें, ऐसा कि हम मुस्कुरा रहे हों, ना कोई खौफ हो ना कोई गम। हम यहाँ तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं, और सोचें मैं बस मरने ही वाला हूँ
वाह, क्या ही नेमत है, क्या ही बरकत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ये नसीब करे। देखें, अगर आप में से किसी ने लोगों को मरते देखा हो तो आपने महसूस किया होगा कि अच्छे लोग अक्सर मुस्कुराते हुए दुनिया से जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक बेहतर जगह जा रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें शहादत के कलिमात नसीब करे और आखिरी अल्फाज जब हम दुनिया से जा रहे हों, क्योंकि हमने सुना है कि नबी करीम ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही मिन दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए दरवाजे खोल दे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ एक खूबसूरत नसीहत शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद को देना चाहूँगा, और वह यह है कि रमज़ान मुबारक से पहले ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या आपको रमज़ान का महीना नसीब होगा या नहीं। अभी से कुरान पढ़ना शुरू करें, रोज़ाना एक आयत। क्या ये ज़्यादा है? रोज़ाना एक आयत। बहुत से लोग मेरे पास आए और कहा कि आपने हमें रोज़ाना एक आयत पढ़ने की तरगीब दी, और अब हम रोज़ाना एक चौथाई पारा पढ़ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम एक पन्ना रोज़ पढ़ रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हमने एक आयत से आगाज़ किया था क्योंकि कुरान मोहब्बत से भरा हुआ है। जब आप इसे वक्त देते हैं तो ये आपको अपनी तरफ खींचता है, आपको करीब लाता है और आपको सुकून अता करता है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। कुरान में शिफा है। यहाँ मैं एक ज़बरदस्त बात कहना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग जब बीमार होते हैं तो कहते हैं कि कृपया मुझे कुछ पढ़ने के लिए दें। हाँ, कुछ सूरतें हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, जैसे सूरह अल फलक, सूरह अन्नास, आयतुल कुर्सी आदि, और कुछ मसनून दुआएं भी हैं जो बीमारी में पढ़ी जाती हैं। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जब लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं कि मुझे कुछ पढ़ने के लिए दें क्योंकि कुरान में शिफा है। अल्लाह फरमाता है शिफाउन लिमा फिस सुदूर कि कुरान में इंसान के सीने की बीमारियों के लिए शिफा है। अल्लाह हमें भलाई अता फरमाए। इसीलिए जब आप रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, इब्तिदा से लेकर अंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक, तो आप ऐसी आयतें पढ़ रहे होते हैं जिनमें किसी ऐसी बीमारी की शिफा होती है जो आपको लाहक है, लेकिन आपको उसका इल्म नहीं। और हो सकता है कि कुरान की बरकत से आप किसी ऐसी बीमारी से शिफायाब हो जाएं जिसका आपको कभी पता भी ना चला हो, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे फरमाएंगे, क्या तुम जानते थे कि तुम्हें यह बीमारी थी? क्या तुम जानते थे कि तुम्हें वह बीमारी थी? लेकिन हमने तुम्हें अपने कलाम की बरकत से शिफा दी। तुम कुरान मजीद की तिलावत करते रहे और तुम्हारी बीमारी उससे पहले ही खत्म हो गई, जबकि तुम्हें उसके बारे में मालूम भी न था। एक व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन। मगर उसे इल्म ना हो, और रोज़ाना कुरान की कुछ आयतों की तिलावत करने की बरकत से अल्लाह ताला ने उसे ऐसी आयतें पढ़वा दी जो इतनी ताकतवर थीं कि उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। न उसे खबर हुई, न किसी डॉक्टर ने तशखीस की, न किसी ने बीमारी को पहचाना। एक दिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे कहेंगे, क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ था? आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। अल्लाह से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। कृपया कुरान मजीद की तिलावत करें। ये ना समझें और न ही सिर्फ एक हिस्सा रोज पढ़ें कि जो बाकी कुरान को बाहर कर दे। एक समय निर्धारित करें कि इसे पूरी तरह पढ़ें। शुरुआत से शुरू करें और एक निशान लगा दें। आज मैं शुरुआत से शुरू करूंगा और एक आयत, 2 आयतें या एक सफ़ा पढ़ूंगा। ये आपकी प्रवाह पर निर्भर है। फिर निशान लगाकर अगले दिन जारी रखें और इसी तरह निशान लगाकर अगले दिन पढ़ते रहें। एक दिन आएगा जब आपका दर्जा ऐसा हो जाएगा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अल्लाह की रहमत ना होती तो मैं हिदायत ना पाता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इस खूबसूरत हिदायत की तरफ राह दिखाई, और अगर अल्लाह की हिदायत ना होती तो हम कभी राह रास्त पर ना आते। तो मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान की तैयारी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कुछ सुन्नत रोज़े रखना शुरू करें, जैसे कि 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े, या सोमवार और गुरुवार के रोज़े। इसका ज़बरदस्त अज्र है और रमज़ान की तैयारी खूबसूरत हो जाएगी। नियतें और मंसूबे बनाएं कि आप कहाँ होंगे, क्या करेंगे और क्या कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत सदका देना शुरू करें, किसी को कुछ दें, अल्लाह आपको अता करेगा। ऐ इब्ने आदम, खर्च करो, अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। अगर आप किसी को कुछ देंगे तो अल्लाह आपको वह अता करेगा जो आप चाहते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह इतना रहम करने वाला है कि वह हमें बिना हमारे हकदार होने के भी अता करता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। शायद मैंने वक्त से ज़्यादा बात कर ली, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसकी तलाफ़ी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने दिलों को पाक करें और एक दूसरे के लिए मोहब्बत महसूस करें।